اور سچے دوستوں کی زیادہ سے زیادہ تلاش جاری رکھو، کیونکہ وہ آسائش کے وقت ذخیرہ ہوتے ہیں اور آزمائش کے وقت ڈھال۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے سوائے بے قدرے کے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم اور ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ ایک بات قبول کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دوستی کی مٹھاس کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ اپنا وقت دوسروں کی تحریروں کے مطالعے سے اپنی صلاحیت بڑھانے میں مصروف کرو، اس طرح تمہیں وہ چیزیں بآسانی حاصل ہو جائیں گی جس کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں نے بہت محنت اٹھائی ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ اور احسان کرنے والا ہو۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود محبت کا اظہار کرتی ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا کر دیا ہے۔ قریب سے دیکھو تو زندگی ایک حادثہ ہے، اور دور سے دیکھیں تو یہ مذاق نظر آئے گی۔ میرا طریقہ میری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یہ میری ذاتی سمجھ بوجھ ہے، نہ کہ کسی اور کو دیکھ کر کیا گیا فیصلہ۔ دنوں کی بہت قدر اور قیمت ہوتی ہے، اگر ایک دن گزر جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ایک دن کم ہو گیا، اس لیے ہر ایک دن کو سوچ سمجھ کر گزاریں۔ اگر تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اسے بدل دو، تم کوئی درخت تو نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ رہو گے۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ میں اپنی ناکامی کا الزام دوسری چیز پر ڈالتا رہا، جب مجھے احساس ہوا مسئلہ میرے اپنے اندر تھا۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اگر تم واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کوئی راستہ ضرور نکال لو گے، لیکن اگر آپ سنجیدہ نہیں ہو تو ہمیشہ بہانے تلاش کرو گے۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو۔ مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسائل کے خاتمے نہیں، عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلی ظرف ہونے کی علامت ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو،
क्योंकि अल्लाह से बेहतर तकसीम करने वाला कोई नहीं है। जब ये महसूस हो कि सभी रास्ते बंद हैं तो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ो। तुम सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया जाता है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है, और फिर जब अल्लाह थाम ले तो कोई गिरा नहीं सकता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया, क्या आजमाइशें आपको रास्ते से रोकती नहीं है? आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर आजमाइश ना हो तो मुझे रास्ते पर ही शक हो जाए। बेशक अल्लाह जिस चीज़ के साथ आजमाता है तो उसमें खैर होती है, अगरचे हम उसके बरक्स सोचें। अपने दिल को इस बात से सुकून दो, अगर आजमाइश ना होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की गोद में ही रहते। आजमाइशों ने ही उन्हें अजीज मिस्र बनाया। लड़की ये गुमान करती है कि उसकी शादी नहीं होगी, औरत ये गुमान करती है कि वो माँ नहीं बनेगी। नौजवान सोचता है वो फकीर और मुफलिस हो जाएगा। तालिब इल्म सोचता है वो कामयाब नहीं होगा। ये सारी बदगुमानियाँ और बुरी सोचें शैतान पैदा करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, शैतान तुम्हें तंदस्ती का खौफ दिलाता है, बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और इंसान शर को इसी तरह मांगता है जैसे खैर को, और बेशक इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है। मुझे उसके सामने बोलना बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरा रब मुझे बड़े गौर से सुनता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इंसानों के बारे में फरमाता है, ज़्यादा की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। क्या हो अगर अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हो कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी चाहत के मुताबिक मुकम्मल कर लो। तो फिर ये फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, क्योंकि किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह सिर्फ नियत और तड़प देखता है। तुम्हारी दुआएं तुम्हें उन चीज़ों तक ले जा सकती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं, क्योंकि नसीब पर अल्लाह के सिवा और किसी का इख्तियार नहीं। और जब तुम अल्लाह पर अपने मामलात छोड़ देते हो तब वो इख्तियार तुम्हें दे देता है, और फिर तुम्हारी दुआएं मौजज़े लाती हैं और सब मुकम्मल कर देती हैं। अल्लाह ताला इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक भी नवाज सकता है। बेशक वो कादिर है हर चीज़ पर, लेकिन अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो कैसे हमें आग में डाल सकता है? वो हमें वो देता है जो हमारी सोच भी नहीं होती। हम उसकी मसलिहत को समझ नहीं सकते, लेकिन वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। वक्त के साथ साथ हमें समझ आ ही जाता है कि अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। अगर अल्लाह तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तक तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। सिर्फ वही करता है ये जबरदस्त तब्दीली, और ये जबरदस्त तब्दीली आपके नाजुक हाथों में है जो तकदीर को बदल सकती है। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह के सामने दुआ के लिए उठाना। चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वालों की बुनियादें हिला देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और शुक्र के लिए ये वजह काफ़ी है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। कोशिश करें कि सुकून का ताल्लुक किसी शख्स से वाबस्ता ना करें।
मांगी हुई तवज्जे नफ्स की इज्जत की तौहीन होती है। हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ मुखलिस नहीं कर सकते। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। रूह आजाद हो मजबूर तकाजा न रहे, है तमन्ना कि मुझे कोई तमन्ना न रहे। सुनता हूँ फरिश्ते थे सरंगू मेरे हुजूर, न जाने मैं अपनी जात के किस मरहले में था। मैं कुर्बान जाऊं उस रब पर जो दरवाजा भी वहां से खोलता है जहां सोचा भी नहीं होता। जिंदगी भर खुदा को ढूंढा, मन में देखा, मन में पाया। जाओ पहले खुद को ढूंढो ताकि तुम मुझे भी पा सको। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग जितने कम हो उतना अच्छा है। शजर जब भी लगाना तो परख लेना जमीनों को कि हर मिट्टी की फितरत में जरखेजी नहीं होती। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इल्म उस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक कोई अता करने वाला ना हो। आप फरमाते हैं, अगर कमाई जायज हो तो लोगों को खाना खिलाने से बेहतर कोई चीज नहीं। वही लोग अनमोल होते हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। और वो इंसान 2 टके का ही है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश में रहता है। कामयाबी ज्यादातर उन लोगों के पास आती है जिनके पास उसे देखने का वक्त भी नहीं होता। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। औरत भीड़ में हो या तन्हा, जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं गम में ना पड़ जाओ। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह के फजल से खुल जाते हैं। ऐ अल्लाह, अपने सजदों में मुझे इतनी इज्जत अता कर दे कि इस दुनिया को याद करने का वक्त ही ना मिले। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया लौट कर नहीं आती। आप अल्लाह से दूर हो गए हैं पर अल्लाह आपसे नहीं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मैंने शम्स से पूछा कि तसव्वुफ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख और तकलीफ जाहिर हो। अपनी रूह की तलाश करो, अपने दिल को सिर्फ इन हड्डियों में ना रखो। अक्लमंद वो है जो सूरत ही को नहीं सीरत को भी संभालने की कोशिश करे। किसी बुजुर्ग से कहा गया कि कुछ नसीहत कर दें। फरमाने लगे, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना करे। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। ये भी तो मुमकिन है कि जिसको बदतर कहकर रुसवा कर रहे हो, अल्लाह के यहाँ उस शख्स का मुकाम तुमसे भी बढ़तर हो। थाम ली है जब सब्र की रस्सी तो फिर क्या फर्क पड़ता है, मुखालिफ एक फर्द हो या फिर लाखों का कोई लश्कर हो। फिरौन की बीवी ने खुद को तब बदला जब वो खुदाई का दावा करने वाले के महल में थी। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने उस वक्त भी खुद को बदलने से इनकार कर दिया जब वो एक नबी के घर में था। आपके बदलने या ना बदलने का फैसला आपका अपना है।
आप इसके लिए हालात की शिकायत नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा हम दुरुस्त फैसले करते हैं और बाज़ दफ़ा हमारे फैसले हमें दुरुस्त कर देते हैं। अल्लाह का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है जिसके बाद कोई मुश्किल नहीं। ए अल्लाह, तेरा जिक्र है मेरी जिंदगी, तेरा भूलना मेरी मौत है। यार तक पहुंचने से पहले दिल यार तक पहुंचना जरूरी है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपने गुरूर को अपने पांव के नीचे रखकर चलना सीखो। बुरे अमाल दीमक की तरह हैं, उनके जरिए बाहर से तो कुछ नहीं बदलता मगर अंदर से सब मिट्टी हो जाता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। और जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर खुद बेफिक्र हो जाना। अल्लाह ताला की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। ए अल्लाह, जिन लोगों से तू राजी है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ए अल्लाह, जिन लोगों पर तेरा खास करम है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। जिन लोगों को तू माफ कर चुका है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। जिन लोगों से तू बहुत ज्यादा प्यार करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। जिन लोगों की तौबा तू कबूल करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। जिन लोगों की तू दुआएं कबूल करता है उन लोगों में हमें भी शामिल कर दे। अपने रब से खौफ और उम्मीद से मांग, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर फर्ज करो अगर अल्लाह अता कर दे और फिर आप अल्लाह की अता और बख्शिश भूल जाओ तो इसका मतलब ये है कि आपके तसव्वुर खुदा में नुक्स है। अगरचे मैं एक चीज की वजह से परेशान हूँ और बार बार अल्लाह से उसकी तलब करता हूँ और जब अल्लाह मुझे अता कर दे तो मैं अल्लाह को भूल जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह नहीं, वो चीज़ मेरी खुदा थी। मैंने उस चीज़ की खातिर अल्लाह को इस्तेमाल किया मगर अल्लाह की खातिर उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। ये एक फ़र्क है हमारी आरजुओं में, हमारे मसलक में कि हम छोटी छोटी आरजुओं के लिए इसमें गिरामी परवरदिगार को इस्तेमाल तो करते हैं मगर हम इतने नाशुक्रगुजार हैं कि जब वो ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं फिर हम अल्लाह का ख्याल भी नहीं लाते और तर्क कर देते हैं। असल में मुसीबतों में ज़रूरत में अल्लाह को याद करना ज़रूरत है और ज़रूरत निकल जाने के बाद अल्लाह को याद करना शुक्र है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी मुसीबतों की रात को सुबह नहीं, वो लोग झूठ कहते हैं। दुआ से दिल का गुबार छट जाता है और रूह का सुकून लौट आता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बुरी चीजें बुरों के लिए हैं और अच्छी चीजें अच्छों के लिए हैं। नापाक लोगों को अंबिया की अच्छी नसीहतें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वही की खुशबू उनके दिमाग के मुताबिक नहीं होती। खिजा का शिकवा मत करो, गम के साथ यूं चलो जैसे कोई अच्छा दोस्त। उसको सुनो क्या कहता है। बसा औकात गार की तंगी और अंधेरा वो रास्ता खोलते हैं जो हम चाहते हैं। बदला तो शुक्रगुजार को मिलता है, ना शुक्र काफिर को नहीं मिलता। काफिरों के अमाल रायगा जाते हैं, अल्लाह ने मोमिनों की दिल की इस्लाह कर दी है। नाशुक्रे से हुस्न और खूबी इस तरह ज़ाइल होती है कि फिर उसका निशान भी नहीं मिलता। जज्ब हो जाएंगे इस खाक में एक दिन हम भी, पी गई है ये ज़मीं यूं ही समंदर कितने। मौलाना रूमी फरमाते हैं,
लोगों से लड़ने में वो ताकत ज़ाय ना करो जिस ताकत को तुम्हें अपने नफ्स से लड़ने में इस्तेमाल करना है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है तो बदले में मैं उसे फल देता हूँ। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जो शख्स खुद अपने ऊपर और अपनी ख्वाहिशात पर हुकूमत करना नहीं जानता, याद रहे कि वो हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा। सोच को इस तरह मुस्बत बनाया जाता है कि जब किसी इंसान को देखो कि उसके हाथ में खाली बर्तन है तो ये न समझना कि मांगने चले आया है। तुम यूं कहो, हो सकता है कि वो सब बांट कर आ रहा हो। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नियतों में खोट रखकर कामयाबी कैसे खरीदी जा सकती है। हम दरख्तों को पत्थर मारते हैं और ये बेचारे जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जवाब में बद्दुआ देने की बजाय अपना मीठा तरीन फल हमारी तरफ उछाल देते हैं। क्या आप इंसानों में कोई एक भी इतना आला ज़र्फ ढूंढ सकते हैं? हर इंसान का एक अपना ज़ाती संदूकचा होता है जिसमें उसकी जिंदगी के सारे सच, कुछ तस्वीरें, चंद खत और गुजरे वक्तों के नक्शे पड़े रहते हैं। जो आंसू ना होते आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। जो दर्द ना होता दिल में तो खुशी की कीमत पता ना होती। जो बेवफाई ना की होती वक्त ने तो वफा की कभी चाहत ना होती। अगर सोचने से पूरी हो जाती मुरादें तो दुआ की कभी जरूरत ना होती। एक शख्स कब्रिस्तान से गुजरते हुए रुका और कहा, कितने सुकून से सो रहे हो। कहीं से आवाज आई, सो तो तुम रहे हो, ये तो सोने की सजा भुगत रहे हैं। दुनिया की फिक्र मत करो, कोई कब्र में आकर तुम्हारा हिसाब नहीं देने वाला। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है। इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। जब जिंदगी में तन्हा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, और इसीलिए उसने सबको तुमसे दूर कर दिया। इंसान की राहत उसकी ज़बान की हिफाजत में है। हर चीज अधूरी है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तुम्हारा क्या है? सब कुछ अल्लाह का है, यानी कि तुम भी। इंसान का दिल और नजर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, बेवकूफ़ की सोहबत से तन्हाई बेहतर है, लेकिन तन्हाई से बेहतर है कि अच्छे लोगों की तलाश जारी रखो। यकीनन तुम उन तक पहुंच जाओगे। इंसान को अपने अखलाक की पाबंदी करनी चाहिए, वरना मरते वक्त पछतावा उसका मुकद्दर बन जाएगा। जमीन पर जन्नत का एक ही रास्ता है और हम उसे मोहब्बत कहते हैं। आप फरमाते हैं, आदमी का वजूद इश्क से ही कमाल तक पहुंचता है। अगर तू ये कमाल नहीं रखता तो तेरी जिंदगी नुकसान में है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ऐसे शख्स पर ताज्जुब होता है जो लोगों के दिलों में घर करने की उम्मीद में बनावट से काम लेता है और भूल जाता है कि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह किसी खुशकिस्मत इंसान पर मुसीबत लाता है तो वो सिर्फ अल्लाह के करीब ही आता है। जिस बंदे में अदब नहीं उसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं। जो अल्लाह का हुक्म अपनी जात पर नाफिज कर गया वो कभी जलील और रुस्वा नहीं होगा। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त तक पहुंचा देता है। दीन का दारो मदार मोहब्बत
और खैर ख्वाही पर मौकूफ होता है। और बहस तो मुनाफिकत की जड़ है, करके देख लो, बहस से मुनाफिकत के सिवा कोई और चीज कभी हासिल नहीं होती। कहो ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मक्कार दोस्त से कि उसकी आंखें तो मुझे देखती हो और दिल चीरे लेता हो। अगर मुझ में भलाई देखे तो उसे दबा दे, और अगर बुराई देखे तो उसे फैला दे। बदतरीन दोस्त वो है जो दोस्त की अच्छाई को गुम कर दे और बुराई को फैला दे। खाक करने वालों की क्या अजीब ख्वाहिश है, खाक होने वालों को खाक भी न समझा जाए। इश्क अपने परों तले एक तेज तलवार रखता है, यह हमारे अंदर मौजूद हर चीज को हटा देता है जो उससे मुताल्लिक नहीं। जो आंखें दुनियावी रंगीनियों से जुदा हो जाएं, उन आंखों का मरकज दिल होता है, और फिर दिल अल्लाह की जानिब हो जाता है। फकीर ने कहा कि जब मैं गुजर रहा था और मेरे पांव से छींटा उड़ा और उस औरत के लिबास पर पड़ा, तो उसके यार को गुस्सा आया। उसने मुझे मारा तो फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। अल्लाह के इश्क तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता आंखें बंद करने के बाद मिलता है। अल्लाह का नूर किसी भी तारीक दिल को रोशन कर सकता है। इश्क बदसूरत नजरों और हकीर लोगों के कानों से पोशीदा है, और उसका जायका शैतानी ज़बान नहीं चख सकती। इल्म दर हकीकत पुलसिरात की तरह है, जो इज्ज और इंकिसारी इख्तियार करता है वो उसे पार करके जन्नत का हकदार ठहरता है, और जो तकब्बुर और रियाकारी इख्तियार करता है वो जहन्नम में गिर जाता है। मायूसियाँ महसूस होने लगे तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दें। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। अगर कोशिश के बावजूद आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे तो एक बार पलटकर पीछे जरूर देख लें, कहीं आपकी दौड़ में आपकी वजह से कोई कुचला तो नहीं गया। तेरा किरदार एक नमूना हो और सारी दुनिया के लिए। जिस काम को कोशिश 100 साल में भी नहीं कर सकती, अल्लाह का करम दम भर में कर देता है। ए अल्लाह, तेरे करम की कोई हद नहीं, तेरा करम मुकम्मल और तू करीम है, बेमिसाल है।